ہمارا مذہب ایک ندی کی طرح ہے، اس میں چالو پانی آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہ ندی کا پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ یہاں آنے جانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہمارے پاس ایک امام موجود ہے، ہر زمانے میں۔ مولا مرتضی علی کو 1400 سال ہوئے، لیکن مومنوں، اسماعیلی دین کوئی مولا مرتضی علی سے چالو نہیں ہوا۔ مولا مرتضی علی کا جو نور تھا وہ ان کے باپ میں بھی تھا، دادا میں بھی تھا، پردادا میں بھی تھا۔ جب سے دنیا کے اندر انسان پیدا کیا گیا، اس کی ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ نے نبی بھیجے، امام بھیجے۔ ہر زمانے کے اندر نبی کا نور تھا اور امام کا نور تھا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھو، جب اس دنیا کے اوپر انسان پیدا ہوا، اس وقت اسے نادانی سے، بیوقوفی سے اور انجان پنے سے ہی واسطہ تھا، علم نہیں تھا۔ تو خدا تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ ہر نبی محمد رسول اللہ کا نور ہے، اور ہر نبی کے ساتھ ایک امام ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو رکھتی ہے، 24 گھنٹے ماں کے پاس رہتا ہے۔ باپ تو کبھی آیا، تھوڑا سا کھیلا، 5-10 منٹ چھوڑ دیا۔ ماں اس کو پرورش کرتی ہے، اس کو مینر سکھاتی ہے، ریت بات سکھاتی ہے، باپ کی شناخت دیتی ہے، بہن بھائیوں کی باتیں سناتی ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، اس کو کپڑے پہناتی ہے، ہاتھ منہ دھونا سکھاتی ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جوان ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی خیالوں کی زندگی، اپنے کام کی زندگی، اپنی ایجوکیشن کی زندگی وہ گزار سکتا ہے، تو پھر وہ ماں سے جدا ہو کے باپ کے نزدیک چلے جاتا ہے۔ اب اس کو ماں کے ساتھ اتنا واسطہ نہیں ہے، اور کبھی وہ زیادہ دیر ماں کے پاس بیٹھتا بھی ہے تو ماں کہتی ہے جا بھی دکان کے اوپر جا، باپ کیا کام کر، باپ کی مدد کر۔ بالکل اسی طرح سے جب خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی اور انسان بنے تو اس کو ماں کی ضرورت تھی، اور ماں کون ہے؟ نبی ماں ہے۔ ابھی تعلیقہ مبارک ہم نے پڑھا، مولانا حاضر امام کہتے ہیں میں مات پتا طریقے دعا آشیش دیتا ہوں۔ حاضر امام باپ بھی ہے، ماں بھی ہے۔ ماں کا نور ہے وہ پیری نور ہے، نبی کا نور ہے وہ ماں کا نور ہے، اور نبی اور پیر کا نور ایک ہی چیز ہے۔ ہم کیوں اس کو صدر دین کو کہ شمس کو ہم پیر کہتے ہیں، نبی کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ نبوت اس لیے ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو وحی کرے، اور ابھی وحی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نبی کے نور کو ہم نے پیر کا نام دیا، اور اللہ کے نور کو ہم امام کہتے ہیں۔ یہ باپ ہے، پیر ماں ہے۔ تو اس زمانے کے اندر جب یہ آدمی دنیا میں نیا نیا تھا، اس کو ہدایت کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس زمانے کے نبیوں نے ان کو باتیں سنائی، ہدایت کی، جھوٹ مت بولو، مینر سکھائے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ہاتھ منہ دھو کے کھاؤ، کپڑے پہننے کا شعور سکھایا، رہنے کرنی اور سوسائٹی کے اندر رہ کے جو ریت بات تھی وہ سکھائی۔ جیسا جیسا زمانہ بدلتا گیا، نبیوں کے فرمان بھی بدلتے گئے، اور یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو کچھ خدا تعالیٰ نے انسان کو سکھانا تھا، نبیوں کی معرفت سے سکھایا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یعنی کہ ایجوکیشن اسکول میں پوری ہو گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، مگر یہ اسکول کی ایجوکیشن سے دنیا میں کام نہیں چلتا۔
किधर भी जाओ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। इसी तरह से रसूलुल्लाह की नबूवत खत्म हो गई, मगर हिदायत बंद नहीं हुई, नूर बंद नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हसन, फिर कासिम, फिर जाफर, फिर ज़ैनुल आबिदीन, फिर मोहम्मद बाकर, फिर जाफर सादिक, फिर अहमद हादी। इस तरह ये पीरों का सिलसिला चला, वंश परंपरा। जैसे कि इमामत का सिलसिला मौला मुर्तज़ा अली से चला, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, मौलाना हज़र इमाम तक। हमारा हज़र इमाम 49th इमाम है, अगर 50वां इमाम है, लेकिन 50वां पीर है। और शाह पीर के दोनों गांव में हज़र इमाम के पास। अगर आप बहुत पुरानी नहीं, यानी पुरानी से मेरा मतलब 5-10 हजार बरस की हिस्ट्री नहीं, 1000 बरस की हिस्ट्री पढ़ लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह से 1400 बरस की, 1300 बरस की हिस्ट्री पढ़ लो, तो आपको पता लगेगा कि हर जमाने के अंदर इमाम मौजूद था, इमाम का नूर मौजूद था, लेकिन बैकग्राउंड में था। जैसा कि बाप छोटे बच्चे की लाइफ में बैकग्राउंड में होता है, माँ फ्रंट में होती है। माँ उसको खाना खिलाती, सब कुछ मैनर सिखाती है, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है फिर माँ बैकग्राउंड में चली जाती है, बाप फ्रंट में आता है। ऐसा ही रसूलुल्लाह की वफात के बाद नबूवत खत्म हो गई। अब हमें बाप की जरूरत है, हिदायत की। मुर्तज़ा अली से इमामत का सिलसिला चला, इमाम का नूर पहले से था, लेकिन दुनिया की सिविलाइजेशन कल्चर का हिसाब करके जमाने के तौर पे वो तमाम रिवल्यूशन जिसको हम वही कहते हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, 4 किताबें इस्लाम के अंदर मंजूर की गई। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी, ज़बूर हजरत दाऊद के ऊपर उतरी, इंजील हजरत ईसा के ऊपर उतरी, और कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर उतरा। हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। हम मानते हैं, बिलीव करते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक और भागीदार नहीं, अल्लाह का कोई बदन नहीं, अल्लाह की कोई शक्ल नहीं, रंग नहीं, मटीरियल हिसाबे अल्लाह किसी चीज जैसा नहीं। हम कोई चीज को कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई अल्लाह ऐसा है, क्योंकि उस जैसा कोई है ही नहीं। अल्लाह एक है, खालिक है, मालिक है, रोजी देने वाला है, रब है, और कुरान उसका कलाम है। हम इस चीज को मानते हैं क्योंकि कुरान हमारे मौला के घर में उतरा। 1 बिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं। अब किसी भी बड़े आलिम को पूछो कि भाई कुरान नाजिल हुआ तो किसके घर में नाजिल हुआ? हजरत अबू बकर के घर में कुरान उतरा? कहेगा नहीं। हजरत उमर के घर में उतरा? कहेगा नहीं। कहाँ उतरा? मोहम्मद और अली के घर में। हम इस्माइलियों का जितना हक कुरान पर है हजरत इमाम के थ्रू से, मुसलमानों का इतना हक 10% भी नहीं, क्योंकि कुरान हमारे मौला के घर में उतरा, अली नबी के घर में उतरा, हसन हुसैन छोटे थे जब कुरान कंप्लीट हुआ। कुरान को समझने वाले वो है कि जिनके घर में खुदा ने कुरान भेजा। ऐसे लगभग 25 से 30 करोड़ अरब हैं कि जिनकी मदर टंग अरेबिक है, उनकी मातृभाषा अरेबिक है, लेकिन आज तक इनके अंदर भी कुरान शरीफ की समझ और कुरान शरीफ का जो तर्जुमा है उसमें ये लोग यूनाइट ना हो सके। गए 1400 साल के अंदर हजारों अरबों में कुरान शरीफ के तर्जुमे किए,
اور قرآن شریف کی انہوں نے تفسیریں کی، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ تو مومنوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن شریف علی نبی کے گھر میں اترا تو علی نبی جتنا قرآن جانتے ہیں اتنا کوئی دوسرا جانتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو کیا علی نبی استغفر اللہ توبہ کر کے کہتا ہوں یوں ہی مر گئے؟ شبد برابر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا علی نبی اپنی اولاد کو قرآن کا علم دیے بغیر گزر گئے؟ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا دین چالو ہے، قیامت تک چلے گا۔ علی نبی نے اپنی اولاد کو یہ علم دیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ جو تھے ان کو یہ علم نہیں ملا، بھلے ان کی زبان عربک تھی۔ علی نبی کے گھر میں قرآن اترا اور یہ سلسلہ بسلسلہ علی نبی کے گھر میں اترا ہوا یہ قرآن جتنا امام جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اور خود قرآن کہتا ہے کہ مجھ کو سمجھنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں، اور وہ ہیں کہ جو علم کے اندر راسخ ہیں۔ راسخ ہے نہ ہو، ہلے نہیں، شک پیدا نہ ہو۔ ہر زمانے کا امام اپنی جماعت کو زمانہ دیکھ کے قرآن کی تعلیم کے اوپر چلاتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا نبی محمد مصطفیٰ ہے، ہمارے امام مرتضی علی سے حضرت امام تک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے کہ جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں مسلمان بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، حدیثوں کو بھول گئے، پالیٹکس میں پڑ گئے۔ اور آپ ہسٹری پڑھو، نبی کریم کے زمانے سے تھوڑا پہلے کی، یعنی نبی سے 100 برس پہلے کی، اور اس کے بعد نبی کی آپ ہسٹری پڑھو تو آپ کو پتہ لگے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے مسلمانوں، میں جاتا ہوں اس دنیا کو چھوڑ کے، 2 چیزیں میں اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہوں، ایک تو خدا کا قرآن کلام کتاب ہے، اور دوسری میری آل ہے۔ نبی کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلے گی کبھی چھٹی نہیں ہوگی۔ قیامت تک قرآن اور میری آل کبھی چھوٹے نہیں۔ تم اگر ایک کو پکڑو گے دوسرے کے چھوڑ دو گے تو نبی قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم واللہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہ کا مطلب ہے رستہ چوک جاؤ گے، بھول جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، ابھی تو جنازہ پڑا ہے، فاتحہ بھی نہیں دی گئی، اور رسول کے جو قریبی کلوزسٹ جو اصحاب تھے اور سسرے بھی تھے، حضرت ابوبکر نبی کے سسر تھے، ان کی بیٹی بی بی عائشہ نبی کی گھر والی تھی، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رسول کی گھر والی تھی، داماد گزر گیا ہے۔ ارے کچھ تو شرم کرو، بیٹی کا گھر والا گزر گیا ہے اور یہ اٹھ کے چلے گئے، جنازہ چھوڑ دیا۔ کہاں گئے؟ ایک چھوٹے سے ہال میں گئے کہ جہاں گائے بھینسوں کی آکشن ہوتی تھی۔ جب وہاں گئے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے گئے، آجو باجو میں باہر بیٹھے تھے، سب کو اندر بلایا، 300 آدمی تھے۔ اس وقت مدینے کے اندر 2 لاکھ مسلمان تھے، 9 مسجدیں تھیں، اور اس چھوٹے سے
सकीफा बनी सादा उसका नाम था। वहां 300-350 आदमियों ने मिलकर हजरत अबू बकर को हजरत उमर के कहने से खलीफा बना दिया। दुआ करो मेरा गला ठीक रहे। खलीफा बना दिया। अब खलीफा बनने में 5-6 घंटे निकल गए और यहां पीछे क्या हुआ? रसूलुल्लाह ने वफात पाई, ये लोग उठ के चले गए। मुर्तजा अली ने नबी को अपनी गोद में उठाया। हसन हुसैन पानी लेके आए और हजरत मुर्तजा अली ने नबी को गुस्ल दिया। एक आदमी कब्र खोदने वाले को बुलाया। इस रूम के अंदर जहां नबी का वो पलंग के 4 पाई पड़ी थी, इसके 4 पांव का निशान करके कब्र खोदी गई रूम के अंदर। और इस कब्र के अंदर मुर्तजा अली ने इनको वही कपड़े पहनाए, कफन नहीं, वही कपड़े के जिन कपड़ों में नबी साहब गुजर गए वो पहले गुस्ल दिया, फिर वही कपड़े पहना के मुर्तजा अली खुद नीचे उतरे, रसूल पाक को सुलाया, मिट्टी डाल के कब्र बंद कर दी। फातिहा पढ़ी, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, खीसे में चाबी डाल के मौला अपने घर में चले गए। अभी 5-6 घंटे के बाद इधर तू मैं होती रही। खलीफा बना दिए हजरत अबू बकर को। अब ये आए, चलो जनाजा निकालेंगे। जब यहां आए, इधर उधर देखा, कुछ लोग बाहर खड़े थे, दरवाजे पे ताला लगा। उन्होंने कहा भाई नबी तो दफन हो गए, अंदर कोई गया नहीं, रसूलुल्लाह का जनाजा नहीं निकाला गया, लोगों ने कंधा नहीं दिया, कलमा शहादत नहीं पढ़ा। आपको ये चीजें ऑर्डिनरी हिस्ट्री में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मुसलमान छुपाते हैं। उस वक्त हजरत अबू बकर जमीन पर बैठ गए गम के मारे और रोने लगे। ये क्या हुआ? 1400 बरस की हिस्ट्री आज तक चली आती है। कयामत तक ये दाग रह गया कि दामाद मर गया मगर ससुरे उसके जनाजे में नहीं गए। ये दाग रह गया और ये दाग कभी मिटने वाला नहीं। हजरत अबू बकर तो बैठ गए, रोने लगे। हजरत उमर गुस्से हो गए, कहने लगे बहुत बड़ा लकड़ी का शहतीर लाओ। शहतीर यानी टिम्बर, ताकि इस दरवाजे को तोड़ा जाए। जब ये बात निकली तो कोई एक आदमी दौड़ा मुर्तजा अली के पास, यानी क्या है? या मौला, वो लोग दरवाजा तोड़ के कब्र खोद के रसूल की बॉडी बाहर निकाल के उसका जनाजा निकालना चाहते हैं। मौला मुर्तजा अली इतने गुस्से हुए कि मुंह में से झाग निकलती थी। ऊपर का बदन ऐसा सोए हुए थे ना, सिर्फ लुंगी बांधी हुई थी, कुर्ता लेके पहनने की फुर्सत न मिली। मौला इसी तरह से दौड़े। जब इस घर के बाहर निकले, थोड़ी दूर गए तो याद आया जुल्फिकार घर पे रह गई, लेकिन अब वक्त नहीं था वहां तक जाने के लिए। रास्ते में एक बहुत बड़ा ऐसा ही टिम्बर पड़ा था, मौला ने उठा लिया। दौड़ते दौड़ते जब गए और मौला को दौड़ते दौड़ते देखा, सब लोग हट गए। मौला ने एक लात मारी, दरवाजा तोड़ दिया और रसूलुल्लाह की कब्र के ऊपर जिस तरह हम घोड़े पे बैठते हैं, एक पांव इधर एक पांव इधर, ऐसा नबी की कब्र पे जाके मुर्तजा अली बैठ गए। हाथ में ये लकड़ की तलवार, तलवार तो नहीं थी, एक टिम्बर था, लकड़ी बड़ी सी। कौन है नबी की कब्र को खोदने वाला? बीबी आयशा भागती आई, अब्बा को कहती है, अब्बा चले जाओ चले जाओ। क्या है? रसूलुल्लाह कहते थे एक दिन आएगा, अली मिट्टी के घोड़े पे होगा, उसके हाथ में लकड़ी की तलवार होगी, उसकी आंखों में से आग के
शोले निकलेंगे गुस्से के मारे, मुंह में से झाग निकलेगी। ऐ आयशा, नबी कहते हैं उस वक्त सारी दुनिया मिल के भी अली का सामना करेगी, अली सबको बर्बाद कर देगा। अब आप चले जाओ। मुंह नीचा करके ये सब लोग चले गए। रसूलुल्लाह आज भी उधर ही दफन है जिधर मुर्तजा अली ने उनको दफन किया था, मदीने में। बाद में उसके ऊपर बड़ा मकबरा बन गया। मैंने आपको ये बात हिस्ट्री की इसलिए सुनाई। नंबर 1, हमारे इमाम हमेशा कहते आए हैं कि तुम अपने मजहब की हिस्ट्री से वाकिफ बनो, अपनी हिस्ट्री पढ़ो, तुम्हें पता लगे। नंबर 2, हमको हिस्ट्री पढ़ने से ये पता लगता है सच्चाई किधर है। अब क्या हुआ, नबी तो इस तरह दफन रह गए, जनाजा न निकला। लेकिन मौलाना रूम ने एक मोहर लगा दी। अपनी किताब में मौलाना रूम ने एक मोहर लगा दी, चू सुहाबा हुब्ब दुनिया दाश्तन, चू सुहाबा हुब्ब दुनिया दाश्तन, मुस्तफारा बेकफन बगुजाश्तन। रूमी कहते हैं कि जो सुहाबी थे, नबी के असहाब थे, उनको दुनिया की मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने नबी को कफन दिए बगैर दफन करवा दिया, छोड़ दिया नबी को। मुसलमानों के दिल जुदा हो गए। कुछ वो लोग थे कि जो खलीफा के पीछे गए, कुछ वो लोग थे कि जो अली मुर्तजा के pीछे लगे। मेजॉरिटी वहां थी, यहां खिलाफत थी। मुर्तजा अली के साथी थोड़े थे, बनी हाशिम वगैरह। तो कुरान का जो इल्म था वो नबी के घर में रहा, नबी की फैमिली में रहा। अब इन्होंने कुरान जमा करना शुरू किया। जब ये कुरान नाज़िल होता था उस जमाने में किताबें नहीं थी, कापियां नहीं थी। तो जैसे जैसे कुरान नाज़िल होता रहा और रसूल अकरम सुनाते रहे, तो कोई कपड़े पे लिख ले, कोई लकड़ी पे लिख ले, कोई पत्थर पे लिख ले। ऊंट की और गाय के पांव का जो ऐसा फ्लैट पीस होता है हड्डी का, हिप के साथ, इसके ऊपर लिख लेते थे। बटके टूट जावे तो उसके टुकड़ों के ऊपर कुरान लिख लेते थे। मुर्तजा अली ने कुरान इकट्ठा किया और रसूलुल्लाह की हयाती में किया। लेकिन इन लोगों ने फिर आके ये 1-1, 2-2, 5-10, 10-10 आयतों जो इधर उधर थी उसको इकट्ठा किया और इन्होंने कॉपी करनी शुरू की। लेकिन जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी आयत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 20, नंबर 30, जैसा कि 23 बरस 23 ईयर्स लगे कि ये कुरान उतर रहा था और उसी के साथ साथ अली लिखते रहे। और लोगों ने ये चमड़े पे, कपड़े पे, ठिकरियों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर लिखा। तो हज़रत अबू बकर के जमाने में कुरान को इकट्ठा करने की स्कीम बनाई गई। इन्होंने 6 आदमियों को उसके अंदर अपॉइंट किया, अली का नाम नहीं लिया। अली से दुश्मनी थी, राइट बिगिनिंग से अली से दुश्मनी थी। इसलिए कि अली ने किसी का मामा, किसी का नाना, किसी का दादा, किसी का चाचा, किसी का थाव, किसी का बेटा, किसी का बाप अली ने मारा था। बड़े बड़े योद्धे, बड़े बड़े पहलवान थे कि जो काफिरों की साइड में थे। इस्लाम में 17 छोटी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, 17 लड़ाइयां हुई। इनमें सबसे बड़ी जो जबरदस्त लड़ाइयां हुई, एक बदर की हुई, एक उहद की हुई, एक खंदक की हुई, एक जमल की हुई। जमल की लड़ाई रसूलुल्लाह की वफात के बाद हुई। इन लड़ाइयों के अंदर बड़े बड़े योद्धे बहादुर लड़ने आते थे। अरे ख्याल करो, 1050 आदमी तलवारें, ढेले सब कुछ लेके आए और इधर मोहम्मद की साइड में 313 आदमी थे। इसमें 20-20 बरस के बच्चे भी थे, जवान थे, लेकिन
30-35 बरस के 40 बरस पहलवान के सामने कौन लड़े? इधर एक ही तलवार थी मुर्तजा अली की, बाकी किसी के पास तलवार भी नहीं थी। ऊंट के पांव की फ्रंट की जो हड्डी थी, ये हड्डियां लेके लड़ने निकले, लकड़ी के गूजों लेके लड़ने निकले। ये 313 है कि जिनके पास हथियार भी नहीं, नहाते हैं, और उधर काफिरों के साथ 1050 सारे अरबस्तान के योद्धे थे। अली की तलवार ने 70 आदमी मार डाले और 100 से ज्यादा जख्मी किए, बाकी भाग गए। अगर अली की तलवार ना होती तो इस्लाम दुनिया में होता ही नहीं। ये हिस्ट्री सुनाने का मेरा मकसद एक ही है कि मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो तरीका है इस्माइली तरीका, ये इस्माइली तरीका कि सदरुद्दीन ने चालू नहीं किया, मौलाना हसन अली शाह 150 बरस पहले आए, उन्होंने चालू नहीं किया। ये तरीका तो रसूलुल्लाह के जमाने से है, रसूलुल्लाह के जमाने से पहले भी था, ईसा के जमाने में भी था, मूसा के जमाने में भी था, इब्राहिम के जमाने में भी था। ये तरीका इस्माइली तरीका, उस वक्त नाम इस्माइली नहीं था, लेकिन हमारा ये सिलसिला, ये तरीका, हर जमाने के अंदर कुछ मुसलमान अली नबी से प्यार करते थे, और अली नबी से पहले जो इमाम और नबी थे उनसे प्यार करते थे। इन तमाम नबियों और मोहम्मद का नूर या अली के नूर का हर जमाने में जो शख्सियतें थी, पर्सनैलिटीज थी, उनको प्यार करने वालों का नाम आज इस्माइली है। हम अपने इमामों को प्यार करते रहे। रसूलुल्लाह के पास जब मदीने में शांति हो गई तो लोग, कुछ थोड़े लोग जिनका काम काज दुनिया में कोई नहीं था, यानी बच्चे बड़े हो गए, खुद बुजुर्ग हो गए, कमाने की फिक्र नहीं रही, तो फिर वो नबी के पास जाके कहे, या नबी, आपने हमें कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, या नबी इससे ज्यादा कुछ है? कहा, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, कुरान पढ़ते हैं, या नबी इससे ज्यादा कुछ है? फरमाया हाँ। तो वो छुप छुपा के एक एक दो को इंडिविजुअली देते थे। आम मुसलमानों की तो ताकत भी नहीं थी इसको समझने की। उस वक्त मुसलमान क्या थे? मजदूर थे, खेतों में काम करते थे, जानवर रखते थे, और वो बेइल्म थे, उनको एजुकेशन कुछ नहीं थी, लिटरेसी भी नहीं थी। अल्लाह कहता है कुरान में, ऐ मोहम्मद, इन अरबों को कहो कि तुमने इस्लाम कबूल किया है सच, लेकिन अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में उतरा नहीं। कुरान की आयतों में है, तुम्हें क्यों नहीं उतरा? क्योंकि सिर्फ नमाज और रोजा वगैरह ये चीजें कि जो अल्फाबेट के तौर पे हैं, बच्चे को सिखाई जाती हैं, ABCDE वगैरह, और 1+1 2 और 2+3 5 ये सिखाए जाते हैं, तो क्या बस यही एजुकेशन है इतनी? अरे इसके बाद तो एजुकेशन बहुत है, यूनिवर्सिटी तक पढ़ना पड़ता है। तो क्या यही चीज थी कि जिसके लिए इतनी मेहनतें हुई कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बाकी खा पी जाओ? सीरियस चीजें थी। सीरियस चीजें क्या थी? आधी रात को उठो, दुनिया से अपने मन को तोड़ के, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसके लिए सोचो। जिसने तुम्हें पैदा किया है उसकी बाबत में सोचो, मुझे किसने पैदा किया, वो कौन है, कैसा है, सोचो। ये थी भेद की बात। ये वो चीज थी कि जो हम लोग करते आए हैं, जिसको हम बैतुल ख्याल कहते हैं। मैं आपको यही कह रहा, आधे आदमी बैठे हैं जिसके पास बैतुल ख्याल का बोल है। ए मोमिनो, खा पी के सो जाते हो,
का रोजगार करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, मोटरों में घूमते हो, कभी याद किया कि मैं एक दिन मर जाऊंगा? आपको अपनी मौत याद है? और मौत लाजिम नहीं कि आदमी को 100-80 वर्ष की उम्र में आवे, मौत तो कभी भी आ जाए। छोटे बच्चे भी मर जाते हैं, जवान भी मर जाते हैं। अरे मां के पेट से मरे हुए बच्चे भी पैदा होते हैं। मौत याद आई कभी? टीवी देखी, सिनेमा देखा, घूमे फिरे, गप्पे मारी, गीबत की, गालियां दी, जरूरत पड़ी तो झगड़ा भी किया, मारधाड़ भी की, खून भी निकले। बस क्या ये हमारी जिंदगी है? एक दिन मरना है। तो कभी सोचो तो सही कि भाई मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद क्या होगा? कहां जाएंगे? ऐ मोमिना, दीन जो है वो इंसान को सोच देता है, अक्ल देता है। और इसमें स्पेशली हमारा मजहब कि जो रूहानी मजहब है, नूरानी मजहब है, हमको अंदर की आंखें खोलने की तालीम देता है। हमारी ये जाहिर की 2 आंखें हैं, लेकिन बिल्कुल इधर इन 2 आंखों के पीछे जहां ब्रेन में अक्ल, इंटेलिजेंस है, ये फ्रंट में 8-8.5 अंश का हमारा ये ब्रेन, 8-8.5 अंश का, जिसको हम अपर ब्रेन कहते हैं, 1.5 पाउंड का ये पीछे का ब्रेन है। टोटल लगभग 2 पाउंड जितना हमारा ब्रेन है। पीछे का जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम है। हमारे हाथ पांव चलते हैं, हमारी डाइजेशन होती है, हमारी नजर, हमारे कान वगैरह, ये सब पीछे कारखाना है। लेकिन ये जो आगे का 8 अंश जितना ब्रेन है, इसमें अक्ल है, इसमें रूह है। और इस ब्रेन के अंदर जमीन आसमान को जानने की, इल्म की ताकत है। इसी ब्रेन के वो भाग में जो अगला भाग है हमारी पेशानी से इन 2 आंखों के अंदर, जहां ब्रेन में अक्ल रहती है, इंटेलिजेंस स्टे करती है, वहां एक आंख है कि जो आंख बंद है, इसको थर्ड आई कहने वाले भी कहते हैं, इसको इंटरनल आई भी कहते हैं, इसको स्पिरिचुअल आई भी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन हमारे अंदर एक और आंख है। जब वो आंख खुलती है तो बाहर कुछ नहीं दिखता और अंदर हिसाब बगैर की दुनियाएं दिखती हैं। हमारे सामने ये तमाम यूनिवर्स सामने आ जाता है। बाहर की आंखें बंद होती हैं, अंदर की खुल जाती हैं। अब इस वक्त हमारी अंदर की आंख बंद है, बाहर की आंखें खुली है। ऐशो आराम किया, खाया पिया। इसकी एग्जाम्पल एक है, हमको कभी कभी रात को सपने आते हैं। जब ये रात को सपना आता है, बाहर की आंखें बंद होती है ना, तो अंदर की आंखों से यानी सपने में हम चीजें देखते हैं। और अगर हम सपने में हलवा खा रहे हैं तो अलग ही हमको हलवे की खुशबू भी आएगी, स्वाद भी आएगा। मगर जब आंख खुल गई, हलवा किधर गया? तो वो जो बातुन में और जाहिर में जो फर्क है, हमने कभी बैठ के सोचा कि भला सपने में मैंने हलवा खाया तो वो क्यों दिखता नहीं है? ये इल्यूजन है, मगर इस इल्यूजन के पीछे एक लेसन है। और लेसन ये है कि जिस तरह ये इल्यूजन है कि मैंने अपने ख्वाब में सपने के अंदर हलवा खाया, वल्लाह बिल्लाह अगर आपकी अंदर की आंख खुल जाए तो आपको वो चीजें नजर आए, वो चीजें मिले, वो चीजें खाओ कि जो इस दुनिया में नहीं है। मगर उन तमाम चीजों की परमानेंसी का मतलब हमेशा रहने वाली परमानेंट चीज बनी है।
वो सच्ची चीज है, और जो आंखों से दिखता है वो खोटी चीज है। हमारा दीन, ये इस्माइली तरीका हमें रूहानियत सिखाता है। ए मोमिनो, मैं आपको आज कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में इसको आजमा के देखो। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, यूं ही वो बाहर आया, रोता है, लेकिन हमको प्यारा लगता है, हम उसको चूमते हैं। इतना दुख उठा के माँ ने उसको जन्म दिया, मगर यूं ही बच्चे के रोने की आवाज आई तो माँ उसको कलेजे से लगाती है, डिलीवरी के सब दुख भूल जाती है। बाप उठाता है, खुश होता है, वो रो रहा है, हम खुश होते हैं, क्योंकि एक नया इंसान हमारी फैमिली में आया। अब ये बच्चा सोया है, दूध पी के सो गया, आंखें ऐसी सख्त जोर से बंद की हुई है। मुकम्मल इंसान है, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, लेकिन आवाज तो सुनता नहीं, कान है। कभी कभी 15-20 दिन के बाद या इससे पहले ऊपर आंखें खोलता है, लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं, क्योंकि रजिस्टर नहीं करता। आंखों में लगभग 1 महीना लगता है नजर आने के लिए। कान 3-4 महीने के बाद डेवलप होकर सुनते हैं। उसकी नाक के पास एक गुलाब का अतर का फाया रख दो, उसको कोई खुशबू का पता नहीं, कोई गंदी चीज रख दो, उसको कोई बू की कोई पता नहीं, उसकी जबान में कोई टेस्ट नहीं। मुकम्मल इंसान है, लेकिन आंखें हैं, नजर नहीं, कान है, सुनता नहीं, नाक है, सूंघता नहीं, यानी इसको ये सेंसेस नहीं है, लेकिन मुकम्मल है ना। तो ये तमाम सेंसेस आस्ते 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 डेवलप होती हैं और बाहर आती हैं। ऐसा ही हमारा ये जो रूहानी मजहब है हमें याद कराता है कि जिस तरह तुम दुनिया में पैदा हुए, सब कुछ होने पर भी तुम कुछ नहीं थे। अभी रूहानी साइड के अंदर देखो, हम इंसान हैं, खाते पीते सब कुछ हैं, लेकिन रूहानी हिसाब में हम उस छोटे बच्चे जैसे हैं। अंदर आंख है मगर बंद है, अंदर कान है, सुनते नहीं, फरिश्तों की आवाज आती है हमें, लेकिन हम नहीं सुनते। हमारे अंदर स्वाद चखने की शक्ति है, मगर वो स्वाद बिरयानी का, समोसे का नहीं, वो अंदर का जो स्वाद है ना, वो रूहानी स्वाद है कि उस जैसा स्वाद दुनिया में कहीं नहीं। अंदरूनी तौर पे हम अभी छोटे बच्चे हैं जो पैदा हुए, हमारे अंदर कुछ नहीं है। हमारे अंदर क्या है? जो बाहर की चीजें हैं हमने उनको अंदर रख लिया। झूठ बोलते हैं, गिबत करते हैं, चोरी करते हैं, दुनिया भर की बुराइयां करते हैं, लेकिन हमको कभी भी ये सेंस नहीं आई कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं ये कर रहा हूं, ये ठीक नहीं। हमारे अंदर हमारी कॉन्शियस जो है वो सोई हुई है। बुराइयां करके अगर कोई मोमिन जिसकी कॉन्शियस जागती है तो वो बुराई करने से पहले ही समझ जाता है कि मैं बुराई कर रहा हूं, बच जाता है। ही पंथ पूरो शूरो कोई किसी आवे। इस्माइली मजहब ये नहीं है कि आप जमात खाने आए, नियाज किया, जुरा खाया और चले गए। भला बताओ तो मुझे नियाज क्या चीज है? हमारे ही तरीके के अंदर ये नियाज मिलता है, मस्जिदों के अंदर नियाज नहीं मांगते। हाँ, हमको इधर जुरा मिलता है, हाँ कभी कभी मस्जिदों में जुरा देते हैं, लेकिन हमारा ये तरीका मुसलमानों को अजायब लगता है। तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, आपके पास क्या जवाब है? आपको कोई मुसलमान पूछ ले, कारण कि इस वक्त मैं आपको एक टीचर के तौर पे वाज कर रहा हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो। आप में से 20 बरस की उम्र वाले को इस मजहब में 20 बरस हुए, 40 बरस की उम्र वाले को इस मजहब में 40 बरस हुए,
जितनी आपकी उम्र है, आपको इतने बरस इस मजहब में हुए, मैं पूछता हूं आपको क्या मिला इस मजहब में? कौन सी चीज आपको जो पहले नहीं थी और इस मजहब में आके पहले कौन सी चीज मिली? दुनिया भर की बदियां बुराइयां मेरी जमात में हैं, दुनिया भर की बदियां जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इधर मेरे को तकरीबन 1 महीना हुआ, सुन के दुख होता है। हमारे घरों की फैमिली लाइफ बिगड़ गई, मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ गए, मार कुटाई बढ़ गई, झूठ बोलना बढ़ गया, तेरी मेरी बढ़ गई, माता पिता को दुख देना बढ़ गया, दुनिया की बदियां हमारे अंदर बढ़ती जाती है, हमारी फैमिली लाइफ खराब हो गई। 100% नहीं हुई है, लेकिन हमारी जमात के अंदर 10% भी खराबी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये नूरानी मजहब है, ये मजहब नूरानी मजहब है। इसके अंदर 1% भी अगर कोई खराबी है तो टॉलरेबल नहीं है। मेरे को बहुत सी रिपोर्टें आई है, मारधाड़ है, झगड़े हैं, एक दूसरे को बेईमान बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि जो नहीं आने चाहिए, और इन दुखों की वजह जो है उससे हमारा दिमाग खराब हो गया है। खराब हो जाने से मेरा मकसद ये है, मुझे रिपोर्ट से मिली है, मैं घूमा फिरा भी हूं, पहले इतने नहीं थे, लेकिन इस दफा मेरे पास ऐसी बहुत सी बातें आई हैं कि लोग डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन में क्या है? दिल राजी नहीं, खुश नहीं, खौफ लगता है, डर लगता है, भय लगता है, एकांत फील होती है, मेरा कोई नहीं। ऐसा फील होता है मेरा कोई नहीं। मैं कल भी बोल के आया मीरा रोड के जमात खाने के अंदर, मैं फिर ये इसलिए कह रहा हूं कि लगभग सब जमातों के अंदर, तेरे को कैसे पता डिप्रेशन में? डॉक्टर ने कहा दिल उदास रहता है, रोने को जी चाहता है, ये डिप्रेशन की निशानियां है। और अगर ये डिप्रेशन बढ़ जाए और ये जो दिल में बैठ जाए कि मेरा कोई नहीं, हालांकि माँ बाप बहन भाई सब कुछ है, फिर भी फील होता है मेरा कोई नहीं, तो ऐसा इंसान जो बहुत हाई डिग्री पे चले जाए तो फिर आपघात कर लेता है, और आपघात हमारे मजहब में हराम है। उसकी सारी इबादत बंदगी नेकियां बर्बाद हो जाती है। घरों की लाइफ भी खराब हो गई। और एक और नई चीज ये निकली कि डॉलर कहाँ मिलते हैं? पूना में नहीं मिलते, बंबई में नहीं मिलते, इंडिया में नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में मिलते हैं। और जवानों के अंदर ये बात आ गई, चलो यूनाइटेड स्टेट्स चलेंगे। हमारा मौला नाराज है, हज़रत इमाम इस बात में नाराज है कि तुम इल्लीगली खाते पीते हालत को छोड़ के वहां डॉलर कमाने के लिए जाओ। वहां जाके हालत खराब होती है। जितने आप यहाँ सुखी हो डॉलर के बगैर, वहां जाके डॉलर मिलेंगे, मन का सुख चला जाएगा, कैरेक्टर बिगड़ जाएगा, सोच विचार खराब हो जाएंगे। इंसान का जो कैरेक्टर जो है वो एक आला चीज है, आला चीज है, वो कैरेक्टर है जिसको हज़रत इमाम बार बार अपनी तारीफों और फरमानों के अंदर कहता है, एथिक्स ऑफ इस्लाम। एथिक्स ऑफ इस्लाम का मतलब है कि प्योर जीवन गुजारो, झूठ न बोलो, किसी की निंदा न करो, किसी पे खोटी तोहमत आरोप मत लगाओ, किसी का माल न खाओ, भूल से भी अगर किसी के पैसे आपके पास आ गए उसको वापस लौटा दो, नेकी से रहो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, आधी रोटी खाओ मगर सुख की खाओ।
دو روٹیاں کہ جو دکھ سے ملتی ہیں، عیش آرام سے ملتی ہیں، غلط طریقے سے ملتی ہیں، گناہ کر کے ملتی ہیں، وہ دو روٹیاں ہمیں دکھ دیں گی، لیکن سکھ کی آدھی روٹی ان دو روٹیوں سے بہت اچھی ہے۔ آشا جی پیٹ کارن پاپ کماوے، پھر انہیں کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ اے بھٹ پڑیو تینوں اوتار، جی پیٹ کے کارن سے، یعنی روٹی کے لیے یا کپڑا، یہ بھی پیٹ ہے نا، ہم کو اچھے کپڑے چاہیے، یہ سب پیٹ کے لیے ہے۔ پھر اصل کبھی دن میں وقت کہتے ہیں پیٹ کے لیے گناہ کرتے ہو، بچ پڑیا، لعنت ہے تیری زندگی کے اوپر، یہ زندگی کس کام کی؟ کبھی کبھی بیٹھ کے مولانا سلطان محمد شاہ اتار فرمایا کرتے تھے، بیٹھ کے وچار کیا کرو۔ آپ خیال کرو دیندارو، ایک مرغی جب زندہ ہوتی ہے تو انڈے دیتی ہے، اور آپ اس کو کاٹ کے کھا جاؤ تو گوشت دیتی ہے، آپ کا پیٹ بھرتی ہے۔ کیا ہم مرغی جیسے بھی نہیں کہ کسی کے کام آئے؟ سوارتھ، ہوں پر میں اور کوئی نہیں، خود غرضی، لالچ، کیا ہے ہماری زندگی؟ جانوروں جیسی بھی نہیں۔ گائے ساری زندگی دودھ دیتی ہے، مر جاتی ہے تو چمڑے اور ہڈیاں ہمارے کام آتے ہیں۔ ہم تو زندگی کے بھی کسی کام نہ آئے، مرنے کے بعد تو کیا کام آئیں گے؟ زمین میں دفن ہو جائیں گے، کوئی کام کے نہیں۔ یہ کہتے ہیں آدمی جب یہ مر جاتا ہے تو اس کو جانور بھی نہیں کھاتے کیونکہ وہ گند ہے۔ اے مومنو، ہم اسماعیلی ہیں، حضرت امام کے روحانی بچے ہیں۔ ہمارے عمل، ہمارا اعمال، ہمارے خیال، ہمارے وچار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نورانی ہونا چاہیے۔ اپنی فیملی کے جھگڑے دور کرو، جھوٹ بولنا بند کرو، کسی کا مال کھانا بند کرو، غیبت بند کرو، نندا بند کرو، خراب سنگت صحبت بند کرو، اور اپنی نورانی لائف کے لیے تیاری کرو۔ ہمارے سامنے ایک برس سے کم نئی سینچری نہیں بلکہ ملینیم جاری ہوتا ہے۔ 2000 سن شروع ہوتا ہے، 1 جنوری 1920 1900 میں۔ اے مومنو، 1900 تو نہیں رہے گا، 2000 1 جنوری اس نئے ملینیم میں، جس کو 1 سال باقی ہے، بلکہ اسی سال دنیا کے اندر بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہوں گی، بہت سی ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بھی ہوگی۔ مولانا حضرت امام نے گئے جون مہینے کے اندر لیڈرز کی ایک کانفرنس تھی، اس میں مولا پوچھتے ہیں، ویل مائی لیڈرز، آر یور ینگسٹرز ریڈی؟ کیا تمہارے جوان تیار ہیں؟ تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، خداوند کاہے کے لیے؟ بابا فرمایا نیا ملینیم آتا ہے تو تمہارے جو ینگسٹرز ہیں وہ تیار ہیں؟ مولا کس بابت میں؟ فرمایا کہ اس نئے دور کے اندر جو بناؤ بننے والے ہیں ان کا سامنا کرنے، برداشت کرنے کے لیے تمہارے ینگسٹرز تیار ہیں؟ ینگسٹرز ہاں تیار ہیں۔ ایک پاسپورٹ پہ 5 جنے جائیں، امریکہ پہنچے،
डॉलर कमाएं, इसके लिए तैयार है ना। मेरे बच्चों, ऐसा न करो। एजुकेशन को कुर्बान करके डॉलर के पीछे जाना, और उसमें बहुत से माता पिता का भी वांक है। वो उत्तेजन देते हैं कि बच्चा उधर जावे और उधर से हमको डॉलर भेजे और हम यहाँ बैठे बैठे खाएं। माँ पिता का भी कसूर है। मगर इस जिंदगी में रूहानियत नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। दिल के अंदर वो जो प्रेम भावना है, प्यार है, मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है, माँ बाप की रिस्पेक्ट है, घर के अंदर भाई भाई की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत है, वाइफ हस्बैंड की मोहब्बत है, माता पिता की बच्चों की मोहब्बत है। हम अपने जमात के अंदर आते हैं तो हमें एक दूसरे की मोहब्बत है। मोहब्बत, लव, अफेक्शन, आज वो किधर गई? स्वार्थवृत्ति पैदा हो गई, होपनी पैदा हो गई, लालच पैदा हो गया। इससे हमारा इस्माइली दीन का, इस्माइली मजहब का, इस्माइली तरीके का जो एम है वो तो मिट गया। क्या एम है हमारा? कि मौत के बाद हम खुदा के नूर में जाएं। ये हमारा एम है। ये जिंदगी कुर्बान करके वो आखिरत की जिंदगी जो है कि जिसका कोई एंड नहीं, उसकी खुशियों का कोई हिसाब नहीं, बाकी तो दिन भर क्या है यहाँ। फिर भी हमको हमारे इमाम ने कि आप अपन मुसाफरी करो, ट्रेन में बैठो, थर्ड क्लास में बैठो कि फर्स्ट क्लास में बैठो, स्टेशन पे एक ही टाइम पे पहुंचोगे। लेकिन एक बात बनेगी कि फर्स्ट क्लास वाला आराम से जाएगा, थर्ड क्लास वाला थोड़ा दुखी होकर जाएगा। तो ये जो इस्माइली तरीका है ये फर्स्ट क्लास है। और इस्माइली तरीका हमें दुनिया के अंदर भी अच्छा जीवन गुजारने के लिए हुक्म करता है। अच्छे मकान है, अच्छे खाओ पियो, आराम करो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन ये पैसा किस रास्ते से आता है इसका ख्याल रखो। मैं फिर रिपीट करके कहता हूं, आधी रोटी खाओ मगर सुख की खाओ। ऐसा रिज़्क नहीं चाहिए कि जिससे हमारी आत्मिक शक्ति को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को नुकसान हो। हमें ऐसा रिज़्क नहीं चाहिए कि हमारे दिलों दिमागों के अंदर शैतान पड़ जाए। हमें पवित्र जीवन गुजारना है, पाक और सुख का जीवन गुजारना है। और अगर हम हज़रत इमाम के फरमानों पे अमल करते रहे तो जिंदगी में इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी सुखी बनेंगे और बने हैं। जो आपकी उम्र इधर 60 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनको पूछो कि वो 50 वर्ष पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मजहब मोहब्बत सिखाता है, प्रेम सिखाता है, हमको अफेक्शनेट बनाता है, रहीम बनाता है, दया भावना सिखाता है, एक दूसरे के साथ मदद करना सिखाता है। और अगर हमारे पास कुछ भी रकम है, पैसे हैं, और मेरा कोई इस्माइली भाई या मेरा कोई सगा कुटुंबी दुख में है तो मैं उसकी थोड़ी सी भी मदद न करूं? जरूर करो। और उसकी मदद करना मौला को बहुत राजी करता है। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का काम करो। और जो कुछ भी हमने कमाया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी फैमिली के लिए भी है, हमारे सगे कुटुंबियों के लिए भी है और हमारी कंट्री के लिए भी है। जिस जगह हम रहते हैं उस जगह भी बराबर। नेक बनो, अच्छे बनो, क्लीन बनो, ऑनेस्ट बनो, सिंसियर बनो, सीरियस बनो और दिन और दुनिया के ऊंचाई पे पहुंचो। राइज हायर, मेंटली भी स्पिरिचुअली ऊंचे उठो। हम बाजार जाते हैं, कुत्ता हमें भौंकता है तो हम तो कुत्ते को नहीं भौंकते। इसी तरह से अगर किसी ने हमारा कुछ बुरा कर दिया तो उसका रिटेलिएशन करना, तो ये तो ऐसा है कि कुत्ते ने भौंका और हम भी भौंके। हमें ऊंचा बनना है,
ہائر تھنکنگ والا بننا ہے اور بدیوں برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. رسول اکرم محمد مصطفیٰ کی جو لائف ہے اس لائف کو دیکھو، رسول اللہ کی لائف پڑھو اور نبی کریم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو، اسلام کی زندگی کو پیش کیا. چھوٹی سی بات کرتا ہوں. رسول اللہ نے نوا اسلام انٹروڈیوس کیا. مکہ جو تھا وہ نبی کریم کا جنم بھومی ہے، مگر وہاں یہودی بہت تھے اور اتنی اپوزیشن ہوئی نبی کو، اپنے رشتہ داروں سے بھی ہوئی، یہودیوں سے بھی ہوئی، کرسچنوں سے بھی ہوئی. تو نبی کو لوگ ہیٹ کرتے تھے جو دشمن تھے، اور دشمن ہیٹ کرے اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی. رسول اکرم ایک راستے سے گزرتے تھے اور دوسرے راستے سے گھر واپس آتے تھے. تو حضور ایک دن ایسا نکلے تو بائی چانس ایک یہودی بائی بڑی عمر کی تھی اور وہ بھی نبی کو ہیٹ کرتی تھی. اپنے گھر میں جھاڑو نکال کے وہ جو کچرا تھا ایسا پھینکنے کے لیے اپنی بالکنی میں آئی. جب وہ بالکنی میں کچرا لے کے آئی تو اس کی نظر پہنچی کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. وہ ٹھہر گئے. جب رسول اکرم اس کی کھڑکی کے نیچے آئے اس نے یہ کچرا نبی کے اوپر پھینک دیا، لیکن رسول اللہ ٹھہرے نہیں، اوپر بھی نہیں دیکھا، ایسا ہی چلتے رہے، کچرا جھاڑ دیا، چلے گئے. دوسرے دن یہ عورت بار بار کھڑکی میں سے دیکھے کچرا اکٹھا کر کے رکھا ہے. نبی آئے، یہ انتظار کرتی 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 جب یہ رسول نیچے آئے اس نے کچرا پھینک دیا. ایسا لگ بھگ 1 مہینے تک چلا اور اس کی مکان کے نیچے یہودی کی ایک دکان تھی اور سامنے دکان تھی. یہ سب لوگ ہنسے، نبی کے اوپر کچرا پڑے اور یہ لوگ ہنسے.